Tanmay Ghosh, with more than a decade of experience in research. Dr. Ghosh is expert in the field of microalgal biotechnology. He has done his BTech in the field of biotechnology from UPTU Lucknow. He completed his doctoral studies on cyanobacteria phycoerythrine from ACSIR. During his days of postdoctoral research from ICGB New Delhi and CSIR CSMRI Bhavnagar, he has made many valuable contributions in the area of extraction of tocopherol. He is expert in many techniques like HPLC, protein purification, single molecule fluorescence lifetime, and spectroscopic techniques. He is currently a NPDF fellow at IIT Indore. His research has been published in some of the most reputed prestigious scientific journals, with 20 papers in highly reputed journals, 3 chapters, and 3 patents to his credit. It's an honor to welcome Dr. Ghosh to the stage and invite him to share his wisdom with us today. Thank you, Anshul, for that very generous introduction. So, hi everybody. Today we will be discussing something which you all will be learning later, maybe during today and tomorrow in the lab. Okay, so yeah, as you know, this workshop is basically intended at characterizing and quantification of contaminants, as you have just heard Dr. Vijay Joshi's lecture. He was more focused on the spectroscopy and microscopic techniques. This workshop, in addition to those techniques, this workshop will also cover like GC and HPLC, which all of you guys are here for mainly. So today, in this session, I will just let's say discuss about the basics of GC, what are the components in there involved, what does it do, and what is the basic output, how can you visualize the results. Today we'll be discussing GC, maybe tomorrow we'll move on to the MS part. Okay, so before moving on to GC, let's just have a quick recap about basic chromatography. So, as everybody knows, chromatography is a technique used to separate mixtures. The name has like chromatography. The term has been derived from its initial use because this technique was first used to separate pigments. So, for that reason, this technique was named as chromatography because chrome, as you know, it refers to colors. It is the simplest form of simplest form is like paper chromatography, which all of us have done basically in our 11th and 12th experiments with separation of plant pigments, okay, through spinach leaves using a mobile phase and a simple paper. Many of you who are into their PhDs and maybe during even MSCs, I think, they must have used some sort of TLC chromatography as well, right? So what is TLC? That's correct, thin layer chromatography. So what is that thin layer? Right, that is a silica gel, and it is held immobilized on a support of glass slide, or if you order it commercially, companies even provide it on a aluminum sheet. So if you order it from some Sigma or Merck or something, they have TLC sheets, pre-prepared TLC sheets on aluminum substrate. So okay, we'll get to that later. Developed by Mikhail Sweat in 1900s, and afterwards that technique was much refined during 1940s and 1950s. Ultimately, it culminated in a Nobel Prize for Chemistry in 1952 to the like not exactly the inventors, but the, let's say, refiners of this technique. Okay. So, what exactly is chromatography and what does it involve? Basically, it involves a stationary phase and a mobile phase and your sample. Okay. So, if we talk about TLC, let's say, what is your stationary phase and what is the mobile phase? Stationary phase is a silica gel. Not the aluminum? That's also stationary, no?
Nitrocellulose membrane, silica gel, and so many things are there. Yes, but let's say we are talking about nitrocellulose membrane is also there, silica gel as well as calcium sulfate, for Calcium example. sulfate. These are all stationary phases. In case of silica gel chromatography like TLC which you have done, it's basically silica gel because the sample moves through the silica gel, not the aluminium. So the phase which the sample moves through, that is your stationary phase, and the gradient or let's say the force which moves the sample along the stationary phase, that is your mobile phase, basically the solvent in which you dip your TLC. Okay, so this small video was speeded up around 16 times, 16 or 20 times I think. It shows you gradually chromatographic separation of ink. So black ink is basically made up of a lot of different components. So black is not exactly black; it can contain blue, violets, and everything. So if you have ever accidentally smudged your record notebooks or copies in school in water or something, you might have seen a basic example of chromatography because we have a separation of pigments there on the paper. Okay, so that is chromatography. So okay, chromatographic separation, of course we discussed, it is a separation of analyte which is partition between a stationary and a mobile phase. Okay, separation is basically achieved by disturbing the equilibrium which the analyte has with the stationary and the mobile phase. In the sense, your sample can contain 10 different molecules. Each of those molecules can interact differently with the stationary as well as the mobile phase. Okay. Chemical reaction is not exactly chemical. Let's say adsorption. Adsorption is basically a very dynamic process. Okay. After some time, after let's say when you dip your TLC sheet into the solvent, the pigments, they attain a certain equilibrium between the stationary phase where they get distributed between the stationary and the mobile phase. Okay. So if we let that sample remain in that state of equilibrium, it will never get separated. Chromatographic separation is basically the disturbing that equilibrium so that it moves along. Okay. Once it moves along the stationary phase guided by the mobile phase, then that separation happens. So that is why it is said that separation is achieved by disturbing the equilibrium between the analyte and the stationary or the mobile phase. There are, let's say, chromatography can be classified on the basis of many things. On the physical state of the stationary and mobile phase, on the scale of your sample treatment, on the technique which is being followed for chromatographic separation, affinity, partition, everything. The broadest and biggest classification is between whether you use your chromatographic technique for whether you use the separated analyte for further analysis, or whether you just want to analyze and quantify the analytes which are present in your sample. Okay. If you just want to analyze and quantify, then you can use your analytical chromatography. It has a small sample size, and majority of your studies which you might have read in your the papers and experiments, they are all based on analytical chromatography. Okay. And preparative chromatography, it has a bigger sample size. It has like different columns which can handle larger sample sizes. Okay, so we use preparative chromatography for the separation of bigger samples, in the sense that we can collect enough amount of your target metabolite for further analysis, maybe for commercialization purposes or further analysis. Okay, so these are some of the terms which you will be frequently coming across when you discuss any of the chromatographic separation procedures. So analyte is your substance which is there in your sample which you want to be separated out. Okay, eluent, or also colloquially known as the mobile phase, basically the mobile phase is the solvent system which moves your sample along the stationary phase. Stationary phase is a substance which is fixed in place during chromatography, through which the analyte or your sample moves and gets separated. Okay, detector, of course, you have a signal, you need a detector to convert that signal into something visual. You need to see peaks or some kind of a visual signal to know that yes, my analyte is there. Flow rate, okay. Flow rate is basically the speed through at which you move your mobile phase through the stationary phase. Okay,
if we, let's say, discuss GC or HPLC, you will frequently encounter terms like this particular mobile phase was run through the machine at a flow rate of around 1 ml per minute or 0.5 ml per minute. Okay, if you must have discussed GC yesterday, right? So you might have gone through all this mobile phase flow rates and everything. So there are a lot of components, there are a lot of factors which affect the GC separation. Flow rate is one of them. Okay. Column, of course, very necessary because commercially there are many different types of columns which are available in the market. Okay, if we talk about HPLC, I was discussing yesterday about C18 column, right? So C18 is the most generic column in case of HPLC. C18 is the most generic column which anybody who doesn't know anything about his analyte or something, he just first applies a sample on a C18 column and tries to elute it out using a suitable mobile phase, mainly methanol, and analyze his what do you call it, the UV visible absorbance on a PDA detector or a UV vis detector. Okay, that is the basic step one follows with when is first time doing HPLC for the very first time for his molecule. Method development. Okay, so method development is let's say a collective term for optimization of several factors which can influence your chromatographic separation. It includes your flow rate, it includes your column length, it includes your column chemistry, the type of column which you are going to use. It also includes your which mobile phase you are going to use, your choice of solvents. It also includes your run time, how many, for what time you are going to let your sample be separated, for what time you are going to let the mobile phase flow through the matrix for your separation. For example, some of your analytes, they may be eluted from the column at around 5 minutes, let's say. But let's say it's a complex mixture, there are 10 different molecules, 2 of them they elute at 5 minutes, 2 of them, another 2, they go until 22 minutes. So you cannot stop the run in between or end it off, otherwise you won't get the later half of the sample. So for that we also need to optimize the run time. So all these things combined, they come under this method development heading. Method development, usually takes a lot of time. For example, when we were doing our tocopherol optimization in ICGB, although it was a fluorescent compound, it took us around 6 to 7 months to get an optimized program to detect our tocopherols in our HPLC system. Okay, so yes, this takes time. Okay, specifically for GC, you will also hear a term known as a split ratio. Okay, so many of you might not be knowing what a split ratio is. For that, you need to know how a GC functions. Basically, a split ratio is something. Let's say if you inject a 10 let's say if you have a 10:1 split ratio set in your GC machine and you want to inject 10 microliter of your sample, then it simply means that 10 parts of your sample will be vented out and only 1 part of your sample will enter into the column for actual separation. This is actually a protective mechanism built in place so that you don't overload the column, because the GC columns are very thin. They are like capillary columns, as I will show in my next slide. So choking is quite common. If you accidentally overload your columns, you will ruin them. Okay. So for that, to prevent that, the companies have devised a technique known as split ratio. In that, your let's say 10%, approximately 10% of your sample is injected and 90% is vented out. Of course, you can control this ratio. Okay, 10:1 is not the standard. It is usually the default which everybody uses. But if you want to, let's say, analyze something which has a very low concentration in your sample, some compound A which has 0.2 ppm or even less than that, then you need to change the split ratio, because if you keep the same split ratio in your for your trace analysis, trace metal analysis or whatever, that compound is going to be vented out. Otherwise you won't see any peak. So we need to play around with the split ratio as well. You will learn all these things when you do it practically. I am just covering the basic theory here just so that you don't get blank while you are facing the GC there. Chromatogram is, obviously everybody knows, that is a visual output of your chromatogram run. Okay, it contains a lot of peaks. On the x-axis there is a
let's say retention time. On the y-axis there is a detector signal. Detector signal can be millivolts, it can be arbitrary units, it can be many other things. So that is basically a chromatogram. It shows you at what time which analyte is being eluted. Retention time, of course I told you, the time at which a particular analyte comes out from the column after being separated. So from the time you start your GC machine to the time it comes out of the column, that is known as the retention time for that particular analyte. And it can also change if we change the mobile phase, we change the flow rate, we change the solvent composition, everything. Okay, so retention time is also very unstable kind of a factor. It can change continuously. Blank run. Why do we need blank runs? I discussed yesterday with you. Why do we need blank runs? कैलिब्रेशन जो ब्लैक में से जो पास आउट हो रहा है वो माइनस हो रहा है. Sorry, I didn't get it. कैलिब्रेशन के लिए हम आई थिंक यूज करते हैं. Calibration के लिए we use standards. जोर से बोलो. जय माता दी. Yes, a blank run is used to cleanse your column basically. For example, say you are running 50 samples in one batch. Okay, so it may be possible that some of those samples may have compounds which you are not aware of, something which has been extracted from your cells which you are not aware of. Then if you are not aware of the compound, then obviously you won't know till what time you can run the GC machine so that that compound completely exits the column. Okay, say for example it elutes at 25 minutes, you got your analyte of choice at 15 minutes, you decide to end your run at around 16 minutes or so. You say that okay, I'll run this, I'll have this run till around 16 minutes only. So that compound which was going to elute at 22 or 25 minutes, that stays inside the column. Okay, it might come out during the next sample injection and contaminate your future results. To prevent that, usually if we have a very concentrated let's say sample, concentrated means if we have taken this prepared the extract with a lot of cells, a large number of cells, 5 ml or so, we usually insert a blank run between every 2 samples, 2 or 3 samples based on our experience. It comes through experience. So based on our experience, every 2 to 3 samples we inject a blank run just to clean out the column, okay, and to remove the artifacts from the previous runs so that it does not contaminate our future runs. Okay, so blank run is also something which will be going through very frequently. Auto sampler, degasser and fraction collector, these are all modules for your GC or HPLC, basic chromatography techniques. Auto sampler is something which you can use to automate your sample collection, okay, so that you don't have to wait for manual injection every time like a run ends. So we have manual injection. The GCMS which we have in our lab is a manual injection one, and the only GC FID which we have in our lab, that is an auto sampler. So we have both. You can see that. The main problem is that auto sampler, for example, if you have a batch of 50 samples, you can put those 50 samples at once and you can forget about it. You can just come at the end of the day to collect your result. But in case of a manual injection, you have to be there every time a sample finishes just to put in the next sample. So that is the main issue. Degasser is basically specifically for HPLC. Degasser is nothing but it removes all the trapped air inside your mobile phase. Mobile phase is basically a liquid. In case of HPLC, it is a liquid. So if we have entrapped air within it, that air will also go through the column and it will cause a blockage. And there will be a sudden pressure drop once your sample encounters a air bubble. So to remove those air bubbles, we need to have a degasser around. And fraction collector is basically for semi-prep and preparative instruments, not for analytical ones. It collects all the fractions which have been separated through the column and collects them separately, of course. So you can later evaporate the solvent, recover your sample and analyze it. Okay, coming to GC specifically. This is basically the GC which we have in our lab. Okay, this is the same auto sampler.
this is a kind of a same auto sampler which we have in our lab. Okay, GC uses an inert gas. Reason is written, of course, in the slide, but main reason is inert gas does not react with either your sample or your stationary phase, and that is very important. Okay, if you, for example, use HCl as a mobile phase, what will happen? HCl itself is very reactive. Okay, so we'll get a lot of chlorides out of here. So for that, to avoid that, it is very important that you use an inert gas as your mobile phase, so that it does not interact with either your stationary phase or your sample. Okay, our most common choices are helium and argon, although helium is getting a bit costly, so people are also resorting to using hydrogen and nitrogen nowadays. Okay, inert gases do not react with either the stationary or the sample stationary phase or the sample components. That is why we use it. And GC is used for separating volatile. So what is a volatile, and why is it only used for, why GC is only used for volatile? What is a volatile compound, first of all? It makes vapors, yes, but almost all component, almost all samples make vapors eventually. It makes vapors easily. Okay, it makes vapors, of course, but it makes vapors easily. Okay, so why do we use GC only for volatile samples? क्योंकि सर अपनी जो कैरियर जो मोबाइल फेस है वो कैरियर गैस है. हाँ, फिर गैस इज द मोबाइल फेस, करेक्ट. फिर तो उसमें अगर मैं नॉन वॉलेटाइल इंजेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा? गैस तो सबको लेके जा सकती है ना साथ में. तो सर उसके लिए जो नॉन वॉलेटाइल होंगे उनको पहले वेपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वो तो उधर लिखा हुआ है. क्यों करना पड़ेगा? वो इसलिए करना पड़ेगा प्लस इफ यू इंजेक्ट अ नॉन वॉलेटाइल इन योर दिस GC कॉलम जो है वो जनरली GC रन्स हमारे होते हैं 200-250 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस. उस टेम्परेचर पे कम से कम हमारे पास एक वॉलेटाइल कंपाउंड होना चाहिए. मतलब हमारा कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जो उस टेम्परेचर पे वॉलेटाइल. अदरवाइज वो गैस उसको सेपरेट नहीं कर पाएगा. इफ इट इज इन लिक्विड फॉर्म, योर गैस कैन नॉट कैरी दैट सैंपल अलोंग. कैपिलरी कॉलम्स हैं, और क्योंकि गैस आपका मोबाइल फेज है, इसलिए आपका जो सैंपल है उसको भी हमें गैसियस फेज में ही कन्वर्ट करना है. अगर हमारे पास कोई नॉन वॉलेटाइल एनालाइट है, उसको हम केमिकल रिएक्शन से डेरिवेटाइजेशन करते हैं. डेरिवेटाइजेशन से उसको हम वॉलेटाइल बनाते हैं, उसके बाद उसको हम GC में एनालाइज करते हैं. अभी आप शायद आप लोगों को जब बायोडीजल का बोलोगे, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इसमें GC में. व्हेन यू डू योर बायोडीजल एस्टिमेशन यूजिंग अ GC, you will see that the lipids are first converted into biodiesel and then injected. Because biodiesel is volatile at 250 degrees Celsius, it becomes a gas. Sorry. Biodiesel is volatile at 250 degrees Celsius, so it converts into vapor. But if you are going to inject directly microalgal lipids from which biodiesel is made, algal lipids को सीधे हम डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे GC में, then that won't be volatile. 200-250 डिग्री सेल्सियस पे they won't vaporize, they'll disintegrate. So there is a very fine difference between destruction and volatilization. We need volatilization but we don't need destruction. So हमें कंपाउंड्स ऐसे चूज करने हैं जो हीट लेवाइल ना हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, हीट लेवाइल कंपोनेंट्स के लिए हम लोग जनरली HPLC प्रेफर करते हैं, एंड हाई टेम्परेचर पे वो वॉलेटिलाइज कर जाए लेकिन डिस्ट्रॉय ना हो. ओके, लिपिड्स को बायोडीजल में कन्वर्ट करने का जो मेन रीजन है वो यही है, बिकॉज लिपिड्स आर नॉट वोलेटाइल बट बायोडीजल इज. 200-250 का जब आप टेम्परेचर को लेके जाते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं, देन यू कैन इजीली सेपरेट. दीज आर द मेन कंपोनेंट्स. बाहर से भी दिखने में ऐसा ही लगता है, उसमें आपको एक कीपैड दिखेगा विच इज बेसिकली द कंट्रोल सिस्टम. कीपैड को जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, वी यूज ऑटोमेटेड, लाइक उसके साथ एक अटैच होता है PC, हम कंट्रोल सारा सॉफ्टवेयर के साथ ही करते हैं. बट कहीं कहीं पे बेसिक GC जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे लोग कीपैड से भी उसको कंट्रोल करते हैं, प्रॉब्लम नहीं. एंड
ओके, तो ये तो एक जनरल वो है. Now we can discuss the individual GC components. GC के अंदर एक्चुअल में होता क्या है और आप लोगों को क्या क्या दिखेगा. तो जहाँ पे ये ऑटो सैम्पलर आपका लगा होता है उसके नीचे ये इंजेक्शन पोर्ट होता है. अगर ऑटो सैम्पलर है तो इसके ऊपर लगा होगा, और ऑटो सैम्पलर अगर नहीं है तो आपको इस ऐसे पोर्ट्स वैसे खुले में ही दिखेंगे. ठीक है, जैसे GCMS में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के पोर्ट आपको दिखेंगे. बेसिकली द इनलेट इज फॉर इंजेक्टिंग द सैंपल्स इनसाइड द GC. ऑफ कोर्स कैसे इंजेक्ट करते हैं, सिरिंज से, वो हम लोग आएंगे बाद में स्लाइड में देखने के लिए. मैनुअल एंड ऑटोमेटिक इंजेक्शंस बोथ पॉसिबल हैं. जो ऑटोमेटिक इंजेक्टर है वो भी इंजेक्शन से एक सिरिंज से ही इंजेक्ट करता है, बट दैट इज ऑटोमेटेड. और जो वो मैनुअल से करते हैं वो हमें ग्लास सिरिंज से करते हैं बेसिक. ठीक है, एंड इनलेट इज इट कंटेन्स दिस, ये स्प्लिट और स्प्लिटलेस करके जो प्रोग्राम ये है उसके ये होता है आपका स्प्लिट रेशो कंट्रोल करने के लिए. उसके अंदर वेंटिंग होती है. ठीक है, इस रेशो को जब हम चेंज करते हैं तो एक्चुअली में ये स्प्लिट स्प्लिटलेस इंजेक्टर जो है वो आपका सैंपल इनलेट वर्सेस वेंटिंग को ऑप्टिमाइज करके जितना कंपोनेंट या जितना सैंपल आपको कॉलम में इंजेक्ट करना है वो तय करता है. तो हमारे पास बेसिकली PSSI है, प्रोग्राम स्प्लिट स्प्लिटलेस इंजेक्शन. ठीक है, हमारी मशीन में ये वाला पॉसिबल है. उसके अलावा दूसरे भी होते हैं, प्रोग्राम टेम्परेचर वेपोराइजर, कूल ऑन कॉलम इनलेट्स वगैरह वगैरह, बट वो अलग अलग GCs के लिए अलग अलग होते हैं. ठीक है, अभी हम फिलहाल ये डिस्कस करते हैं कि जो लैब में अवेलेबल है ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा ईजी रहेगा. तो हमारे पास अभी PSSI है. PSSI इज नथिंग बट द इंजेक्शन सिस्टम. ओके, इंजेक्शन इट इंट्रोड्यूसेस सैंपल्स. ऑटो इंजेक्टर या ऑटो सैंपलर मैंने अभी बोला कि वो हमारे लिए सैंपल, इट मेक्स ऑटोमेशन ऑफ सैंपल हैंडलिंग वेरी इजी. सो वी डोंट हैव टू बी देयर फॉर ईच मैनुअल इंजेक्शन. हम लोग रन लगा के सॉफ्टवेयर में सेट करके वी सेट अ सीक्वेंस इन द सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक वी डिड यस्टरडे इन द HPLC. वी कैन सेट अ सीक्वेंस इन द GC सॉफ्टवेयर एज वेल एंड वी कैन गो. जिस तरीके से भी आपने वायर्स अरेंज किए हैं और जैसा सॉफ्टवेयर में सीक्वेंस सेट है उस हिसाब से मशीन अपना सैंपल पिक करेगी, अपना इंजेक्ट करेगी, रन करेगी. ओके, मैनुअल इंजेक्शन ग्लास सिरिंज से होता है बेसिकली ये ऐसा. तो ग्लास सिरिंजेस इसलिए क्यों ग्लास सिरिंज क्यों, प्लास्टिक क्यों है? प्लास्टिक कहाँ रिएक्टिव है? इतना तो अच्छा से प्लास्टिक यूज कर तो खाना वाना पीना सर ग्लास इनर्ट मटेरियल होता है सर. ग्लास इज ए इनर्ट मटेरियल. प्लास्टिक में भी रिएक्टिव. इंजेक्शन तो हाई टेम्परेचर में आएंगे ना, उधर रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि हमारे जितने भी सैंपल्स तैयार होते हैं वो सॉल्वेंट्स में होते हैं. सो दैट इज करेक्ट. प्लास्टिक्स जो है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ग्लास इन चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग जनरली ग्लास यूज करते हैं. ठीक है, एंड द यूजुअल वॉल्यूम्स विच वी इंजेक्ट इन आवर मशीन्स 1 to 2 माइक्रोलीटर, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, तो सिरिंज जो होते हैं वो 5 माइक्रोलीटर के भी आते हैं, 10 के भी आते हैं, 20 के भी आते हैं, 1 ml के भी आते हैं. तो हमारे पास शायद 10 माइक्रोलीटर वाला आई थिंक शायद यही है. तो जब आप GCMS यूज़ करेंगे तो आप इस तरीके की सिरिंज से इंजेक्ट करेंगे. अवन जो है बेसिकली ये टेम्परेचर प्रोफाइल मेंटेन करता है. तो यहाँ पे किस किस को पता है कि HPLC फॉर एग्जांपल अगर हम करें तो आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट रन्स क्या होते हैं? किसी ने कभी थ्योरेटिकली पढ़ा है? सो आइसोक्रेटिक हम जनरली उसको बोलते हैं जहाँ पे हमारा मोबाइल टेस्ट ऑफ कॉम्पोजिशन रन के टाइम पे चेंज नहीं होता, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट योर एंटायर रन. ठीक है, और ग्रेडियंट होता है जहाँ पे हमारा मोबाइल फेस का जो कंपोजिशन है दैट डायनामिकली चेंजेस एज द रन प्रोग्रेसेस. 10 मिनट के लिए एक सॉल्वेंट चला, 20 मिनट के लिए एक सॉल्वेंट चला, ऐसे. HPLC में हम सॉल्वेंट का फ्लो और उसका कंपोजिशन कंट्रोल करते हैं. GC में हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं उसी तरह, क्योंकि हम मोबाइल फेस का जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं कर सकते, वो हमारा हीलियम ही चलेगा, उसके अंदर दूसरे और किसी गैस की कोई गुंजाइश है. तो उसके अंदर हम लोग क्या वेरी कर सकते हैं? बेसिकली हम लोग टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं. तो अवन का ये काम है कि जो टेम्परेचर प्रोफाइल हम लोग सॉफ्टवेयर में स्पेसिफाई करें वो कॉलम अवन जो है उसको मेंटेन करता है. ठीक है, एंड इसमें 2 तरीके के रन होते हैं, एक आइसोथर्मल होता है और एक प्रोग्राम होता है. आइसोथर्मल रन इज दैट रन वेयर योर टेम्परेचर इज हेल्ड कांस्टेंट थ्रू आउट द एंटायर रन. अगर आपका 50 मिनट का है और आपने बोला 350, तो वो 350 पे पहुंच के पूरे रन में वो 350 रखेगा. अगर प्रोग्राम रन है
तो आप उसको स्टेप्स में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आपने बोला उसको पहले 10 मिनट के लिए फॉर एग्जांपल 60 तक रखिए, फिर उसके बाद रैम्प रेट होता है। एक रैम्प रेट आपने कभी टर्म अगर सुना हो, रैम्प रेट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, मतलब कितने टाइम में आप कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो रैम्प रेट अगर मैं रखता हूँ 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट का, और उसके बाद बोलता हूँ कि फाइनल टेम्परेचर उसको 180 है, 180 को उसको 5 मिनट होल्ड करना है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आप अवन में कर, मतलब अवन ही है जो ये करता है, करते तो हम सॉफ्टवेयर में हैं लेकिन एक्चुअल में ही अवन में होता है। कॉलम ऑफ कोर्स अवन में ही रहता है क्योंकि उसी के लिए ये सब टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं। प्रोफाइल, हाँ जैसे मैं कह रहा था, टेम्परेचर प्रोफाइल जो है इट कैन बी आइसोथर्मल प्रोग्राम। आइसोथर्मल इज इट यूटिलाइजेज वन सिंगल टेम्परेचर ड्यूरिंग आवर एंटायर रन। ठीक है, ये हम जनरली वैसे सैम्पल्स के लिए यूज़ करते हैं जिनके अंदर के एनालाइट्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक बहुत ही नैरो रेंज में है। से फॉर एग्जांपल एक सैंपल लिया जिसके अंदर 10 एनालाइट्स हैं, उनका सबका बॉइलिंग पॉइंट का जो मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है दैट इज अराउंड 10-15 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम सिंगल टेम्परेचर पे रन करके उसको लेके चले जाएंगे तो वो आराम से सेपरेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोग्राम टेम्परेचर हम तब यूटिलाइज करते हैं जब हमारे पास ऐसा कोई सैंपल होता है जिसके अंदर के कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत फर्क है। लाइक फॉर एग्जांपल एक अगर बॉयल हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा वाला बॉयल हो रहा है 300 पे, तो ऐसे किसी सैंपल के सेपरेशन के लिए हम लोग कोई एक फिक्स टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक फॉर एग्जांपल आपका सैंपल जब तक वहाँ पे वेपर स्टेट में नहीं रहेगा तब तक वो सेपरेट नहीं होगा। और वेपर स्टेट में वो कब आएगा वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। अगर एक का बॉइलिंग पॉइंट 60 है और एक का 350 है, आपने रन लगाया 180 पे, तो जो 60 वाला है वो तो वेपराइज हो जाएगा, लेकिन जो 350 वाला है वो वेपराइज नहीं होने वाला, तो उसका मतलब उसका सेपरेशन होगा नहीं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स के लिए जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का रेंज काफ़ी ज़्यादा है, हम लोग ऐसे प्रोग्राम टेम्परेचर रखते हैं। उसमें हम लोग रैम्प रेट वगैरह सब स्पेसिफाई करके बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को इतना टेम्परेचर इतनी देर के लिए होल्ड करना है, फिर उसको इतने से इतने लेके जाना है, लाइक 60 से 180 तक लेके जाना है विदिन 2 मिनट्स, फिर उसके बाद वहाँ पे 5 मिनट का होल्ड रख के देन फर्दर इंक्रीज डिक्रीज, वो सब डिपेंड करता है। ये सब मेथड ऑप्टिमाइजेशन पे है और ये डिपेंड करता है कि आपका एनालाइट क्या है और कौन सा कॉलम आप लोग यूज़ कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, प्रोफाइल इज प्रोग्राम टू अवॉइड कंडेंसेशन ऑफ हाई बॉइलिंग एनालाइट्स। ठीक है, हम लोग जनरली यूजुअल प्रैक्टिस ये है कि हम लोग एक लो टेम्परेचर से शुरू करते हैं। अगर प्रोग्राम हमारा है टेम्परेचर प्रोफाइल अगर प्रोग्राम वाला यूज़ कर रहे हैं, वी यूजुअली बिगिन द रन एट अ लोअर टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 60, 50, 60, 70, एंड उसके बाद उसको हम उसमें हमारे लो बॉइलिंग कंपोनेंट जो है वो पहले रिजॉल्व होकर निकल जाते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, हमारे हाई बॉइलिंग कंपोनेंट जो है वो बाद में निकलते हैं। हाँ, सो यस, ये है कॉलम आपका। ठीक है, ऐसे कई तरीके के कॉलम आते हैं। जीसी का कॉलम मेनली ऐसे ही दिखता है, ये जो रोल टाइप का पड़ा हुआ है। सो यू कैन सी इट्स अ वेरी वेरी थिन ग्लास कॉलम। ठीक है, एंड इसका कॉमन जैसे फॉर एग्जांपल ये इसके पैकेजिंग का जो लेबल है उसी के अंदर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट आ जाती है। कौन सा कॉलम है उसके अंदर, वो ड्यूरोबॉन्ड DB5 विच इज़ अ बेसिक जीसी कॉलम, जो HPLC में जैसे C18 है, यहाँ पे जीसी में DB5 है। जिसको कुछ नहीं पता वो सबसे पहले DB5 पे रन करना शुरू करता है, उसके बाद वो ऑप्टिमाइज करता है अपने सैंपल की। लेंथ इज ऑफ 30 मीटर। जितना लेंथ ज़्यादा होगा उतना सेपरेशन अच्छा होगा। डिफिकल्ट टू सेपरेट कंपोनेंट्स भी आपके अगर लेंथ बढ़ा दो तो कभी कभी आ जाते हैं, बट जनरली वी आर लिमिटेड बाय द चॉइसेस ऑफ कॉलम्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, 30 मीटर से ज़्यादा लंबे कॉलम्स हम लोग मार्केट में है नहीं, इसलिए हम लोग उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन 30 मीटर से नीचे वाले कॉलम्स में हम लोगों को 15-25 मीटर वाले कॉलम भी आते हैं जीसी के। ठीक है, इंटरनल डायमीटर जो mm में ये दिखा रहा है, दिस इज योर इंटरनल डायमीटर। मतलब जो कैपिलरी का इंटरनल डायमीटर है दैट इज 0.25 mm, मतलब 250 माइक्रोन। इसीलिए लिक्विड सैंपल से चोकिंग की चोकिंग का जो हैजार्ड है दैट इज क्वाइट, मतलब काफ़ी वो है, प्रॉब्लम आ सकती है इस वजह से। और ओवरलोडिंग भी इसमें बहुत आराम से हो सकता है, बिकॉज इसके अंदर बहुत ही थिन डायमीटर है, तो अगर आपने गलती से सैंपल ज़्यादा डाल दिया तो वो ओवरलोड होकर शुरू हुआ जो कॉलम है वो वाला 1 मीटर या 2 मीटर वो खराब कर देगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए स्प्लिट रेशो हम लोग वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, एंड फिल्म इज योर एक्चुअल स्टेशनरी केस।
वो फिल्म जो है वो आपके ये जो कैपिलरी कॉलम के इनर वॉल पे कोटेड रहती है, इस सॉर्ट ऑफ कोटिंग, ठीक है। वो कोटिंग के अलग अलग फॉर्म्स हैं, उसको हम वो उसकी जिस तरीके से वो कोट किया गया है उसके बेसिस पे हम कॉलम्स को भी अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। प्लॉट कॉलम्स होते हैं, एस्कॉर्ट कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो मेनली हम लोग यहाँ पे प्लॉट कॉलम्स यूज करने वाले हैं, फुल फॉर्म में भी याद नहीं है बट विल डिस्कस। तो ये कोटिंग जो है दैट इज योर एक्चुअल स्टेशनरी फेज, उसमें से आपका जो सारा सैंपल है वो मूव करेगा, ठीक है। और पैकेजिंग में स्पेशली ये टेम्परेचर लिमिट जहाँ पे दिख रहा है ये वो लोग जरूर स्पेसिफाई करते हैं। -60 से लेके 350 डिग्री तक जा सकता है, बट 325 इज योर रिकमेंडेड। 350 तक वो जा सकता है, लेकिन वहाँ तक ले जाने के लिए नॉट रिकमेंडेड। ये क्यों यहाँ पे ये वाला टेम्परेचर लिमिट क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम जब ट्रबल शूटिंग वाले में आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो कंसिडर करना चाहिए। मोबाइल फेस ऑफ कोर्स इसके अंदर तो कुछ नहीं होता, बेसिकली गैस सिलेंडर्स होते हैं विद प्रेशर रेगुलेटर्स, 2 स्टेज होते हैं प्रेशर रेगुलेटर्स टू अवॉइड सर्जेस। जो जीसी मशीन है तो उसको एक स्टेडी सप्लाई ऑफ गैस चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर प्रेशर होना चाहिए और उस प्रेशर में वेरिएशन नहीं होना चाहिए सबसे पहले। तो उस प्रेशर वेरिएशन को मिनिमाइज करने के लिए हम 2 स्टेज रेगुलेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। गैसेस ऑफ कोर्स वो 99.995 से 99.995% तक प्योरिटी होनी चाहिए और उसके अंदर ऑक्सीजन और मॉइस्चर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। क्यों? किसने बोला ऑक्सीजन? गुड, आगे क्या होगा? ऑक्सीजन होगा तो रिएक्ट ज़्यादा कर देगा तो पूरा का पूरा उसको चेंज, उसके साथ में ऑक्सीडेशन के बाद वो कंबाइन कर लेगा ऑक्सीजन उसके साथ में, उसको ठीक। मॉइस्चर क्या करेगा? वॉलेटाइल नहीं होने देगा, सिंपल। अगर पानी रहा तो वॉलेटाइल करोगे कैसे उसको? तो इसके लिए वॉलेटिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना है, इसकी वजह से उसमें एक तो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज राइट, ऑक्सीजन अगर होगा तो इतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी चीज ऑक्सीडाइज कर जाएगी, इंक्लूडिंग योर सैंपल्स एंड एनालाइट्स। अगर वो ऑक्सीडाइज कर गए तो जो सैंपल आपको चाहिए वो तो नहीं रहा उसके अंदर, उसके ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे इसलिए ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर होना ही नहीं चाहिए। और उसके अलावा भी हम लोग ये जो डिवाइसेस हम लोग देखते हैं, ये आप लोगों ने कल भी जीसी के पीछे लगे हुए देखे होंगे, ठीक है। दीज आर ऑल ट्रैप्स। ये जैसे ऑक्सी ट्रैप है, यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रैप हो जाता है। अगर गलती से गैस में आ भी गया है, थोड़ा ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एंड ये वाले जो जितने ये ब्लू व्हाइट और ये ब्लैक वाले जो हैं, दोज आर मॉइस्चर ट्रैप्स। अगर उसमें गलती से कहीं से लाइन में मॉइस्चर घुस गया है या कुछ हो गया है तो दीज ट्रैप्स विल रिमूव दैट मॉइस्चर एंड यू विल गेट योर प्योर मोबाइल फेस हीलियम बेसिकली। और ये एक और प्रेशर रेगुलेटर यहाँ पे है, ये यहाँ से लाइन निकलती है नीचे से और वो डायरेक्टली जीसी में जाती है। कल आप लोगों को दिखाया होगा वो गैस पैनल। तो ये पैनल जो है वो जहाँ जहाँ जीसी या जीसीएमएस होगा वहाँ पे ये पैनल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली सिलेंडर से जीसी में गैस घुसाने में रिस्क है। सिलेंडर कहाँ से पैक होके आया है, वो गैस उसमें किस कंडीशन के अंदर में फिल करी गई है, वो हमको नहीं पता। तो हम अपनी सेफ्टी के लिए ये वाला जो मॉइस्चर ट्रैप्स, ऑक्सीजन ट्रैप्स वगैरह ज़रूर लगा के रखते हैं, ठीक है। दिस इज योर मेन डिटेक्टर। हालांकि ये जो पैनल का कवर है इसे ढका हुआ रहता है, आप लोगों को दिखेगा नहीं। तो डिटेक्टर इज नथिंग बट इट डिटेक्ट्स द सैंपल। जब कॉलम में से सेपरेट होके आपके एनालाइट्स बाहर आ रहे हैं, देन यू नीड अ सिग्नल। तो आपको कैसे पता लगेगा कहाँ से आ रहा है? डिटेक्टर बेसिकली वो एक सिग्नल को पकड़ के उसका एक विजुअल फॉर्म में रिपोर्ट वो जनरेट करता है, क्रोमैटोग्राम जनरेट करता है। डिटेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो बेसिकली जीसी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर FID, ECD एंड एक और आएगा आगे आएगा। हम जो यहाँ पे GCMS में डिटेक्टर यूज करने वाले हैं दैट इज बेसिकली FID, ठीक है। व्हाट इज एन FID? FID इज बेसिकली फ्लेम आयनाइजेशन होता है, सबसे कॉमन डिटेक्टर है जीसी के लिए। फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह सबके लिए यूज होता है वो, ठीक है। मोस्ट यूज फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट जहाँ पे ऑर्गेनिक उसमें C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड S हो। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड जो है उसके लिए हम लोग FID नहीं यूज कर सकते, कार्बन डाइसल्फाइड के लिए नहीं यूज कर सकते एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए नहीं यूज कर सकते। वो इसलिए क्योंकि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बेसिकली ये यहाँ से आपका सैंपल आता है नीचे से,
यहाँ से आप हाइड्रोजन एंड एयर सप्लाई करते हैं। वो हाइड्रोजन और एयर यहाँ पे ये आपका इग्नाइटर है, बेसिकली लाइटर, जो यहाँ पे इग्नाइट करके यहाँ पे एक हाइड्रोजन फ्लेम जनरेट करता है। इस हाइड्रोजन फ्लेम में आपके यहाँ से जो नीचे से कंपाउंड्स आ रहे हैं, दोज आर ऑक्सीडाइज्ड, दे आर कन्वर्टेड टू बेसिकली CO2, ठीक है। इसीलिए इसको ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा इनऑर्गेनिक में ये काम नहीं कर सकता, बिकॉज यू कांट गेट CO, जहाँ पे कार्बन होगा नहीं वहाँ पे CO2 बन नहीं सकता। हाइड्रोजन फ्लेम में इनको कार्बन डाइऑक्साइड आयंस बना के फिर वो यहाँ पे डिटेक्टर प्लेट पे डिटेक्ट होके फिर वो सिग्नल जो जाता है वो एम्प्लीफिकेशन पे जाता है, फिर वो कंप्यूटर में चला जाता है, सॉफ्टवेयर से हम लोगों को पीक्स मिलता है। तो बेसिक टेक्नोलॉजी ये है कि यहाँ पे जो भी आपका सैंपल यहाँ से एंटर कर रहा है उसको यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लेम में जलाया जाए, बेसिकली ऑक्सीडाइज किया जाए। हाइड्रोजन फ्लेमिंग मतलब फ्लेम तो बहुत सारी, LPG है, LPG डाल दो उससे भी फ्लेम तो आ ही जाएगा, ठीक है, या मीथेन डाल दिया तो मीथेन से भी फ्लेम आ जाएगा। हम हाइड्रोजन ही क्यों यूज करें? फॉर दैट मैटर हम लोग यहाँ से नीचे से ऑक्सीजन, यहाँ से जहाँ पे H2+ मेकअप एयर दे रहे हैं, यहाँ से हम ऑक्सीजन सप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑक्सीजन भी यहाँ पे इग्नाइट हो सकता है, उससे भी फ्लेम आ सकता है, तो व्हाई नॉट यूज ऑक्सीजन? नहीं, एयर तो जा रहा है ना सर। ये सर हाइड्रोजन पंप या फिर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना रहा, कितना उसका बॉइलिंग रहा, उसे मेजर कर पाएंगे सर? डिटेक्टर कितना हाइड्रोजन यूज हुआ है? नहीं, मेजरमेंट से कोई लेना देना नहीं, इट जस्ट नीड FID को सिर्फ ये वाला फ्लेम चाहिए, ठीक है। डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बर्निंग C कंपाउंड एंड H2 फ्लेम्स। जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं उस आयंस की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, जो यहाँ पे ये जो आपके प्लेट्स हैं यहाँ पे करंट डिटेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका बेसिकली ऑक्सीडेशन और आयनाइजेशन हो रहा है फ्लेम की वजह से। तो अगर ये फ्लेम हाइड्रोजन का है तो उसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस जो है इट एमिट्स अ क्लीन फ्लेम। क्लीन का मतलब उसमें रेजिड्यू नहीं होता कोई, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल मीथेन, LPG कुछ भी बर्न करेंगे, उसमें बर्न करने के बाद आपका ऑलरेडी CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कार्बन रेजिड्यूज आते हैं उसके अंदर, जो अनबर्न गैस है वो आपका कार्बन रेजिड्यूज आपके सैंपल में इंट्रोड्यूस कर सकता है। आप मेजर कर रहे हैं कार्बन और आप फ्लेम की वजह से भी अगर इसके अंदर कार्बन डाल रहे हैं तो आपके सैंपल में से कार्बन आया है कि यहाँ से आया वो आप कभी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी प्रेफर हाइड्रोजन। सेकेंड, ये जो डिटेक्टर है ये यहाँ पे जो आयंस फॉर्म हो रहे हैं उसके आयंस है बेसिकली कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आता है। आयन जो फॉर्म हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू मास, मतलब जो कंपाउंड हैवी होगा उसका आयनिक मास भी हैवी होगा, जो कंपाउंड लाइट होगा उसका आयनिक मास लाइट होगा। तो दिस डिटेक्टर इज बेसिकली सेंसिटिव टू योर मास, ठीक है। ये मास मेजरमेंट का डिटेक्टर है। अगर ये मास सेंसिटिव है तो यहाँ पे जो हम हाइड्रोजन बर्न हो रहा है ये भी अपना कुछ ना कुछ आयन बनाएगा, वो भी इस डिटेक्टर पे जाएंगे, उस वजह से भी कुछ करंट आएगा। तो हाइड्रोजन जो गैस है दैट इज बेसिकली द लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। लाइटेस्ट एलिमेंट का मतलब ये है कि वो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट का है, इसलिए उसका जो यहाँ पे आयन प्रोड्यूस होकर जो यहाँ पे मास आएगा दैट इज ऑल्सो द लाइटेस्ट। सो जो डिटेक्टर में बेस लाइन आएगा वो लो बेस लाइन आएगा। बेस लाइन मतलब डिटेक्टर का कुछ एक रेस्पॉन्स तो है जो हमेशा आएगा ही नीचे, वेदर और नॉट योर सैंपल इज देयर इनसाइड द डिटेक्टर और नॉट, उससे फर्क नहीं पड़ता। डिटेक्टर को मेजर करना है, वो कुछ ना कुछ तो नंबर देगा मेजर करके। तो जो वो हाइड्रोजन का मेजर करेगा दैट इज द लोएस्ट। हाइड्रोजन से नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन प्रेफर करते हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल मीथेन वगैरह बर्न करें, LPG बर्न करें, वो तो कार्बन रेजिड्यूज की वजह से यहाँ पे कंटामिनेशन होगा तो वो आउट हो जाते हैं। लेकिन किसी ने फॉर एग्जांपल पूछा कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन के जब आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे उनकी वजह से जो करंट आएगा वो ज़्यादा आएगा, तो उस टाइम पे आपको बेसलाइन ऊपर मिलेगा, रेस बेसलाइन मिलेगा। अगर रेस बेसलाइन मिलता है तो आपके सैंपल में अगर कोई एक कंपोनेंट है जो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में है, बहुत ही कम क्वांटिटी में है, तो रेस बेसलाइन में आपको वो ट्रेस अमाउंट का क्वांटिटी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपका बेसलाइन ही ऑलरेडी इतना ऊपर है कि वो पीक आपकी छुप जाएगी मास पर। टू रिड्यूस और मिनिमाइज दिस बेसलाइन हाइड्रोजन इज यूज, एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो क्लीन बर्निंग फ्यूल, तो वो भी एक एडवांटेज है। इसलिए हम लोग जनरली FID में हाइड्रोजन ही यूज करते हैं।
इनफैक्ट हमारे GCMS के पास आपने कल एक देखा होगा, एक वाइट कलर का बॉक्स रखा होगा, दैट इज अ हाइड्रोजन जनरेटर। ठीक है, वो हाइड्रोजन जनरेट करता है। GCMS में भी एक FID फिट है, उस FID के लिए हाइड्रोजन वहां से आता है, लेकिन हम लोग जनरली उसको यूज नहीं करते। क्यों? उनको बताया था क्या सर GCMS के टाइम पे? Okay. वो इसलिए क्योंकि GCMS में जो है MS इज योर डिटेक्टर, इसलिए हमें अच्छा अलग से FID यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो GC-FID स्टैंड अलोन है उसमें हम लोग FID यूज करते हैं, लेकिन जो GCMS में उसमें MS जो है वो डिटेक्टर का काम करता है, इसलिए हम लोग FID नहीं यूज करते हैं। एंड MS इज फार मोर सेंसिटिव देन FID। ठीक है, और उसके और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ओके, इसका बहुत ही वाइड एप्लीकेबिलिटी है, लो मेंटेनेंस, रगेड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड जनरली फार्मास्यूटिकल और पोल्यूटेंट्स, एनवायरमेंटल जितने भी ये सारे इंडस्ट्रीज हैं उसमें ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उनको मेजर करने के लिए प्रेफरेबली हम लोग FID यूज़ करते हैं। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज एक और है, अगर हम फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल गैसेस का सैम्पलिंग कर रहे हैं, उसमें पोल्यूटेंट्स देखना चाहते हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये मेजर ही नहीं करता है। और तो इस वजह से जो एटमॉस्फेरिक गैसेस में आपका कार्बन CO और CO2 का जो इंटरफेरेंस है वो वैसे ही मतलब माइनस हो जाता है, वो आएगा ही नहीं उसके अंदर। सो एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए इसीलिए GCMS का यूज जो है वो काफ़ी प्रिवेलेंट है। उसके बाद TCD, दिस इज बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी। उसमें यहाँ से आपका जो ये एनालाइट फ्लो, यहाँ से आपका एनालाइट एंटर करता है डिटेक्टर में, यहाँ पे हीटेड फिलामेंट होता है। हीटेड फिलामेंट की वजह से जो गैस है उसकी कंडक्टिविटी चेंज होती है, एंड कैरियर गैस की कंडक्टिविटी अलग होती है, और कैरियर गैस मतलब मोबाइल फेज की कंडक्टिविटी अलग है, मोबाइल फेज प्लस एनालाइट उसकी कंडक्टिविटी अलग है। उन दोनों के बीच के कंडक्टिविटी का डिफरेंस मेजर करके वो हमें पीक देता है यहाँ पे। सो दैट इज अ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, मेजर कैरियर गैस कंडक्टिविटी विद इन विदाउट सैंपल। एंड एडवांटेजेस ये हैं कि ये भी रैपिड है, इजी टू यूज है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, सबके लिए। सैंपल कलेक्शन भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ सॉरी, ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया, FID जो है इट डिस्ट्रॉयज द सैंपल। क्यों? क्योंकि हम उसको फ्लेम में बर्न कर रहे हैं, तो उसके बाद वो सैंपल आपका बचने वाला नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमें सैंपल रिकवर करना है, फॉर इंस्टेंस हम लोग कोई एक प्रेपरेटिव GC चला रहे हैं जिसके अंदर हम सैंपल इंजेक्ट तो करेंगे, लेकिन एनालिसिस के बाद हमें वो एनालाइट फ्रैक्शंस में वापस चाहिए, तो हम लोग FID यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम एक वाई शेप का ऐसा स्प्लिटर लगा देते हैं, तो एक पोर्शन जो है वो GC मतलब FID के अंदर जाता है, दूसरा वाला एक फ्रैक्शन कलेक्टर के अंदर चला जाता है। तो उसका पीक आपको मिल जाता है FID से, और बाकी आपका फ्रैक्शन कलेक्टर से आपको फ्रैक्शन मिल जाता है। तो FID का मेन डिसएडवांटेज यही है कि वो सैंपल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, TCD नहीं करता। यहाँ से फ्लो आउट करने के बाद आप यहाँ से आपका जो सैंपल है वो कलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, और ये एक फ्लो डिपेंडेंट डिटेक्टर है। अगर फ्लो में स्लाइड चेंजेस होंगे, प्रेशर सर्च की वजह से फ्लो ऊपर नीचे होगा, तो उस वजह से आपकी डिटेक्शन एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है काफ़ी। और एक है ये ECD इज अ वेरी सेलेक्टिव डिटेक्टर। इस मतलब एक सेलेक्टिव डिटेक्टर का एक एग्जांपल है। उसके अंदर होता ये है कि यहाँ पे एक बीटा एमिटर रहता है। बीटा पार्टिकल सबको पता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, नथिंग। ठीक है, यहाँ पे बीटा एमिटर रहता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने निकल 63 दिया होगा, हाँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक निकल 63 का ब्लॉक है, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे कैरियर गैस प्लस जो सैंपल आपका आ रहा है उसके साथ इंटरेक्ट करके उनको आयनाइज करते हैं। उस आयनाइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको यहाँ पे एनोड पे डिटेक्ट किया जाता है। उस सिग्नल से हम लोग पता लगाते हैं कि आपका एनालाइट बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ एनालाइट्स ऐसे होते हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, कौन सा है, अल्कोहल्स है, नाइट्रो कंपाउंड्स है, सॉरी अल्कोहल्स नहीं, हैलोजेंस एंड नाइट्रो कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं केमिकली। वो उनका प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग एजेंट्स होते हैं, तो वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं, जिस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब बेसिकली करंट। तो जब यहाँ पे एक स्टेडी स्टेट इलेक्ट्रॉन का है तो वहाँ पे एक स्टेडी स्टेट करंट है। अगर जैसे ही आपके कैरियर गैस के अंदर कोई ऐसा एनालाइट आया जो इलेक्ट्रोफिलिक है, फॉर एग्जांपल कोई हैलोजन आ गया, तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, दैट डिक्रीज इन करंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पीक। कितना डिक्रीज हो रहा है वो इंटेंसिटी आ जाती है, और डिक्रीज हो रहा है तो वो वहाँ पे एक पीक दे देता है। तो इट इज बेसिकली यूज फॉर इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोकार्बन या अमीन से अल्कोहल के लिए
एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं कर सकते। ओके, आपके काम की चीज़, क्रोमेटोग्राम कुछ ऐसा दिखता है। ये एक्चुअल में हमारे लैब का ही एक क्रोमेटोग्राम है जो मैं कल डिस्कस कर रहा था। जीसी हो या HPLC सॉफ्टवेयर बेसिकली सबका सेम ही होता है, सबके क्रोमेटोग्राम ऑलमोस्ट इसी तरीके से आपको दिखेंगे। ठीक है, फर्क सिर्फ होगा कि कौन सा डिटेक्टर यूज हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे इसके यूनिट चेंज होंगे वाई एक्सिस पे, लेकिन ये वाला जो है वो सेम रहेगा। ये रन टाइम दिखाता है और पीक्स भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इन पीक्स को देख के फिर हम MS से आइडेंटिफाई करते हैं जनरली कि वो हमारा कौन सा एनालाइट है, पहला। दूसरा, अगर हमारे पास MS नहीं है तो हमें स्टैंडर्ड्स चलाने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड से हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड कहाँ कितने रिटेंशन टाइम पे आ रहा है, उसको हम लोग अपने सैंपल के साथ कंपेयर करके फिर देखते हैं कि वो हमारा प्रोबेबल कंपाउंड हो सकता है, ऐसा करके हम एक प्यूटेटिव गेस करते हैं। देन वी कंफर्म इट थ्रू आइदर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर उसका फ्रैक्शन कलेक्ट करके हम उसका दूसरे तरीके से NMR कराते हैं या UV विजिबल, जो भी जिस भी तरीके से कंफर्म करना होता है। तो बेसिक क्रोमेटोग्राम आपका इसी तरीके का आता है। ध्यान देने वाली बात है ये जो सबसे बड़ी पीक है, ये किसकी? सर ये ब्लैंक रन किया होगा? नहीं, ये पूरा रन एक ही है। एक सैंपल में उनको इतनी सारी पीक्स मिली है, कितनी? 31, और आखिरी जो कंपाउंड है दैट इज 31। दिस इज योर सॉल्वेंट का भी खुद का कुछ तो पीक होगा ना। तो यूजुअली GC हो या HPLC फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर हम लोग जो पीक्स आती हैं उसको सॉल्वेंट का कंसिडर करते हैं। अगर हमारा एनालाइट का पीक भी 5 मिनट के अंदर अंदर ही आ रहा है तो वी ट्राई टू ऑप्टिमाइज कि हम लोग उसको उस विंडो से बाहर निकालें, आइदर चेंजिंग द फ्लो रेट या फिर किसी तरीके से डेरिवेटाइजेशन करके या दूसरा किसी तरीके का कॉलम यूज़ करके या टेम्परेचर प्रोफाइल चेंज करके हम लोग करते हैं कि वो कम से कम 5 मिनट के बाद है। क्योंकि 5 मिनट के अंदर अंदर जो ये पीक आती है, ये जनरली सॉल्वेंट की पीक होती है और ये पीक सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज योर सॉल्वेंट इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू योर सैंपल। ठीक है, उसी के अंदर आपका सैंपल डिजॉल्व है, तो इसलिए उसकी पीक भी सबसे बड़ी आएगी। अगर इतनी बड़ी पीक के बीच में अगर आपका एनालाइट थोड़े ही अमाउंट में होगा तो वो यहाँ पे मास्क हो जाएगा। इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा एनालाइट जो है वो 5 मिनट के बाद चालू हो क्रोमेटोग्राम का। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग 5 मिनट के पीक्स को डिसरिगार्ड करते हैं जनरली। और ये इस तरीके का टेबल आता है GC। इसमें GC हो या HPLC, ये टेबल ऑलमोस्ट सबके लिए कॉमन है। इसमें हम लोग रिटेंशन टाइम के साथ एरिया परसेंटेज, हाइट और हाइट परसेंटेज रहती है। लास्ट में इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इसलिए आपको यहाँ पे एक टोटलिंग नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वरना एक वो टोटल करके दे देता है कि इतना एरिया है, टोटल एरिया, इतना एरिया परसेंटेज का टोटल है। 100% ही होता है। एरिया परसेंट एंड हाइट परसेंट जो है उनका टोटल 100 आ जाता है। और ये एब्सोल्यूट एरिया और एब्सोल्यूट हाइट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। क्वांटिफिकेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन, फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये वाला कंपोनेंट है 19.91 अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स पे जो ये एरिया आ रहा है 415, ये हमारा फॉर एग्जांपल अगर एनालाइट है और ये इसका एरिया है, तो हम इसी का एक स्टैंडर्ड रन करेंगे और उसमें कैलिब्रेशन कर्व बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन GC पे रन करके उसका एक कैलिब्रेशन बनेगा। कैलिब्रेशन कर्व में भी हम लोग इसी तरीके का एक टेबल मिलेगा जो हमें एरिया वर्सेस रिटेंशन टाइम बताएगा। हम लोग उस एरिया, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कर्व है हमारे पास, हमने उसके अंदर नोन कॉन्सेंट्रेशन इंजेक्ट किए हैं। देन वी प्लॉट अ ग्राफ कि किस नोन कॉन्सेंट्रेशन का कितना एरिया है, उसको कहते हैं एरिया वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का स्टैंडर्ड कर्व। दैट इज योर GC या HPLC का कैलिब्रेशन कर्व। उस कैलिब्रेशन कर्व के बेसिस पे फिर हम उसमें से एक इक्वेशन निकालते हैं, जैसे हम लोग किसी भी ऐसे के लिए करते हैं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। उस इक्वेशन में फिर हम लोग ये वाले एरिया इनपुट करते हैं अननोन का, और हमें अननोन का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। ये सारी चीज़ें आपके आएंगी डिस्कशन में धीरे धीरे जब आप डेटा एनालाइज करेंगे GC का। मेन ये अब मशीन है, इट कैन गो रॉन्ग एनी टाइम, और जिसमें इतने सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उसमें गलती के चांसेस भी ज़्यादा हैं, एरर के चांसेस भी ज़्यादा हैं। जो मोस्ट कॉमन एरर्स हैं वो मैंने यहाँ पे मतलब कंपाइल करने की कोशिश करी है जो हम लोगों को प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो ये नॉन रिजॉल्विंग पीक्स। नॉन रिजॉल्विंग पीक्स का सिंपल मतलब होता है दो पीक्स एक साथ मर्ज हो गए, आइदर वो इनकम्प्लीट सेपरेशन हुआ है या फिर वो सेपरेट हुआ ही नहीं है, वो एक ब्रॉड पीक के फॉर्म में हमारे पास क्रोमेटोग्राम में बाहर आ गया है। उसको चेंज करने के लिए हम लोग
जैसे मैंने कहा था कॉलम का लेंथ चेंज कर सकते हैं, उस वजह से कॉलम लेंथ चेंज करने से सैंपल को ज़्यादा टाइम मिल जाता है स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन करने का, तो हो सकता है उस टाइम पे वो सेपरेशन हो। सेकेंड होता है हम लोग ये टेम्परेचर का रैम्प रेट और होल्डिंग टाइम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके एनालाइट्स का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं तो आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अवन को होल्ड करा सकते हैं, वहाँ पे एक कंपोनेंट एल्यूट हो जाए, उसके बाद आप उसको रैम्प रेट चेंज करके सेकंड टेम्परेचर पे ले जाइए, वहाँ पे आपका दूसरा कंपोनेंट एल्यूट हो जाए। इस तरीके से हम दो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग जो ये टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से 5-10 डिग्री नीचे होता है। एक थंब रूल है, यूजुअली एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, बट जनरली जो हम कंपाउंड्स चलाते हैं जीसी में फॉर एग्जांपल, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो हम अवन को ले जाके 95 पे स्टेबल कर देते हैं और 95 पे वो एल्यूट हो जाता है पूरे। ठीक है, 5-10 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस रखने में डिसएडवांटेज ये है कि कोई दूसरा कंपोनेंट वहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर 90 है, अगर आपने उसको 92 रख दिया तो वहाँ पे जो आपका सेकंड कंपोनेंट है जो 90 पे बॉइल हो रहा है वो भी आ सकता है। ठीक है, 90 और 100 के बीच में, तो 100 वाले के लिए एल्यूट कराना है अगर फॉर एग्जांपल हमने उसको 98 पे सेट करके रख दिया वन को, 98 पे वो आराम से एल्यूट हो जाएगा या 102 पे हो जाएगा ऐसा। एंड उसके अलावा हम लोग ये फ्लो रेट डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, फ्लो रेट डिक्रीज और इंक्रीज करने से क्या फर्क पड़ेगा? सॉरी, प्रेशर तो Sir, एचपीएलसी के लिए है, जीसी के लिए है ही नहीं, बट प्रेशर के अलावा Sir, if there is a reduced flow rate, definitely the separation is good, very good. Because अभी बताया एब्जॉर्प्शन उसका ज़्यादा बेटर जो- तरीके से हो पाएगा। यस, अगर आप फ्लो रेट डिक्रीज कर देंगे बेसिकली तो आपके सैंपल को ज़्यादा टाइम मिल रहा है, अगेन वही स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन के लिए ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो उस टाइम पे सेपरेशन आपका बेटर हो सकता है अगर आप फ्लो रेट थोड़ा सा कम कर देंगे। फास्टर फ्लो रेट्स में दिक्कत ये होती है कि वो इतनी जल्दी उसको कॉलम के थ्रू लेके जाता है कि उसको स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट करने को उतना टाइम नहीं मिलता है, तो उस वजह से सेपरेशन में कई बार कमी हो जाती है। ये बात जीसी एज वेल एज एचपीएलसी दोनों के लिए कॉमन है। हम लोग फ्लो रेट डिक्रीज करके कभी कभी अनरिजॉल्व कंपोनेंट्स को हैं जो रिजॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम उसको देके एनालाइट को कॉलम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करा बेसिकली। ठीक है, और एक मेन प्रॉब्लम आती है ये कॉलम ब्लीडिंग। ठीक है, ये कॉलम ब्लीडिंग जिसको कहते हैं वो इसका एग्जांपल है ये, जैसे यहाँ पे आपका बेस लाइन यहाँ तक स्टेबल आ रहा है, उसके बाद इसने धीरे 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 इंक्रीज करना शुरू किया, फिर वो यहाँ पे आ गया प्लेट एक पीक बना के। ठीक है, ये क्यों होता है? दिस इज बेसिकली अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जीसी वगैरह में। उसमें होता ही है कि हायर टेम्परेचर्स पे जो आपका स्टेशनरी फेज है वो एल्यूट आउट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि वहाँ पे वो जो टेम्परेचर लिमिट स्पेसिफाई किया हुआ है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई कॉलम लिखा हुआ है कि आप उसको 250 तक लेके जा सकते हैं और आपने उसको 350 पे चला दिया है तो ये ब्लीडिंग के इफेक्ट्स उसके अंदर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, वैसे प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो कॉलम्स पुराने हो जाते हैं उनमें ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती ही है। अगर ये एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर है ब्लीडिंग तो आप रिजल्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर वो अनएक्सेप्टेबल हो रहे हैं तो आपको कॉलम चेंज करना पड़ेगा। तो ओल्ड कॉलम्स में तो ये प्रॉब्लम आनी ही है, लेकिन कभी कभी होता है कि भाई ये कॉलम तो हमने बहुत ही नया खरीदा था, इसको हार्डली 2 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा बेस लाइन आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जनरली कॉलम ब्लीडिंग की वजह से होता है। थोड़ा बहुत ब्लीडिंग सब में होता है, जैसे इसको हम लो ब्लीड बोलेंगे, जिसमें आप ये जो आपका जो बेस लाइन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज यहाँ पे भी हो रहा है लेकिन ग्रेजुअल हो रहा है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा प्रोनाउंस है, तो ये अचानक से बढ़ गया, तो उस चक्कर में आपके ये जो इन पीक्स का जो क्वांटिफिकेशन है जो इसके ऊपर आ रहे हैं स्लोप के ऊपर, उनका क्वांटिफिकेशन आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को ब्लीड मिनिमाइज करना है। ब्लीड मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों को आइदर हम लोग जैसे कॉलम का मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल वहाँ 350 था, हम जनरली उसको 20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस नीचे ही रखते हैं, मतलब 330 से ऊपर हम लोग उसको नहीं लेके जाते हैं। ठीक है, और अगर हमें किसी किसी एक प्रोग्राम के लिए फॉर एग्जांपल अगर उसको 330 से एक्सीड करना भी पड़े तो वी ट्राई टू ऑप्टिमाइज आवर प्रोटोकॉल इन सच अ वे कि 330 पे उसको ज़्यादा टाइम ना रखना पड़े। वहाँ पे 1-2 मिनट रखा, 5 मिनट रखा, उसके बाद वापस टेम्परेचर को डिक्रीज करा के लिया। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर पे कॉलम का एक्सपोजर जो है वो लिमिट करके हम लोग जनरली ब्लीडिंग रोक सकते हैं। उसके अलावा भी कंपनीज आजकल क्रॉसलिंक कॉलम्स भेजती हैं
मार्केट करती है, उनके ब्लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से मतलब बेटर होते हैं, वो ज़्यादा ब्लीड नहीं करते हैं। और दूसरी तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि हम लोग ये एक्सटेंसिव और फ्रीक्वेंट कंडीशनिंग जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। कंडीशनिंग इज नथिंग बट बेसिकली आप जैसे कॉलम वॉशिंग जैसे HPLC में होता है, हम लोग प्रीवियसली आर्टिफैक्ट वगैरह हटाने के लिए उसका कॉलम को वॉश करते हैं सॉल्वेंट से। दिस कॉलम वॉशिंग इज कंडीशनिंग इन GC। ठीक है, आप उसके अंदर से मोबाइल फेस पास करा रहे हैं जस्ट टू एल्यूट आउट एनी आर्टिफैक्ट फ्रॉम प्रीवियस रन। तो जब प्रीवियस रन में आप ये वॉशिंग दे रहे हैं उसको, तो आप एलिवेटेड टेम्परेचर लाइक 300 350 पे उसको वॉश देना अवॉइड करिए, ताकि ये जो ब्लीडिंग का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा अवॉइड हो जाए, कॉलम हमारा ज़्यादा चल सके। तो बेसिकली इंक्रीज द लाइफ ऑफ द कॉलम, नथिंग एंड रेजिड्यूज। तो रेजिड्यूज में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि ब्लैक रन हम लोग देते हैं रेजिड्यूज वगैरह निकालने के लिए, जो भी हमारे प्रीवियस आर्टिफैक्ट्स हैं उनको हटाने के लिए। ठीक है, तो रेजिड्यू निकालने का एक तरीका और है, मतलब कॉलम में अगर आ जाए तो क्लीन करना ही पड़ेगा। नहीं आने के लिए प्रिकॉशन हम लोग ये लेते हैं कि उसके अंदर ओवरलोडिंग हम लोग अवॉइड करते हैं। ओवरलोडिंग अवॉइड करना मतलब बेसिकली स्प्लिट रेशो के साथ खेलना। अगर हम स्प्लिट रेशो चेंज करेंगे, इंजेक्शन अपने आप चेंज होगा, मतलब इंजेक्शन वॉल्यूम अपने आप चेंज हो जाएगा। एंड दिस नॉइजी बेसलाइन। नॉइजी बेसलाइन मतलब जब आपका बेसलाइन आता है वो उसके अंदर ऑलरेडी कुछ नॉइज तो होता ही है सर। अगर वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर है देन इट इज फाइन। अगर वो बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा है उसके अंदर, तो हो सकता है आपका डिटेक्टर कंटामिनेटेड है, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी खराब हो सकता है। डीसी का डिटेक्टर के जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं, PCB सर्किट्स वगैरह, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। रिटेंशन टाइम शिफ्टिंग, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। जनरली जब हम स्टैंडर्ड चलाते हैं, और फॉर एग्जाम्पल अगर टोकोफेरॉल का स्टैंडर्ड हमने चलाया, हमें अल्फा की पीक मिली 12.2 पर। जब हमने उसको माइक्रोएल्कल एक्सट्रैक्ट को उसके अंदर रन कराया, तो वही पीक शिफ्ट होके वो 13 या 14 पर पहुंच जाती है। कई लोग बोलते हैं कि उसको वो एक नया कंपाउंड है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि सिर्फ अकेले स्टैंडर्ड चलाना और सैंपल के साथ पूरे उसमें से टोकोफेरॉल या कोई भी एनालाइट एस्टिमेट करना, सैंपल और स्टैंडर्ड के बीच में कई बार शिफ्टिंग हो जाती है। 1-2 मिनट की शिफ्टिंग भी क्वाइट कॉमन है, मतलब होती है जनरली। वो इस वजह से भी होती है क्योंकि सैंपल के अंदर आपका सिर्फ अकेला एक आपका एनालाइट ही नहीं है जो प्रेजेंट है, उसके साथ और भी बहुत सारे कंपाउंड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, उस वजह से पीक शिफ्टिंग हो सकती है। एंड जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हमारी आती है ये होती है, ये फ्रंटिंग की और टेलिंग की। उसमें जो नॉर्मल पीक है वो ऐसी होनी चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का एक शार्प पीक जिसको बोलते हैं। उसमें ना पीक के फ्रंट में भी ना कोई टेल है, ना पीक के बैक में कोई टेल है। यहाँ पे दोनों में टेलिंग हो रही है, यहाँ पे बैक में हो रही है, यहाँ पे फ्रंट में हो रही है। ये कई रीजंस की वजह से हो सकता है। इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम लोगों को प्रोटोकॉल थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। प्रोटोकॉल ऑप्टिमाइजेशन इज नथिंग बट प्लेइंग विद योर रिटेंशन और प्लेइंग विद योर फ्लो रेट, योर टेम्परेचर प्रोग्राम। 2 मेन फैक्टर हैं जिसके साथ हम लोग GC में मतलब खेलते हैं बेसिकली। ओपन टू क्वेश्चंस, जिसको भी पूछना है। Sir, is there any application of GC in diagnosis of diseases? Of course, क्यों नहीं? For example, अभी रिसेंटली कुछ रिसर्च ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं जिसके अंदर ह्यूमन ब्रेथ में जो मेटाबोलाइट्स हैं उनको उन्होंने GC से सेंस करके ये बताया है कि ओरल कैंसर हो सकता है। Okay. ठीक है, तो डिजीज स्टेट इज नथिंग बट माल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। माल फंक्शनिंग अगर होगा उस वजह से कुछ एक मेटाबोलाइट्स जो हैं वो डिफरेंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो मेटाबोलाइट्स वोलेटाइल हैं देन वी कैन इजीली डिटेक्ट देम थ्रू GC। उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई नॉर्मल सैंपल में ये नहीं है, डिजीज स्टेट में ये वाला है, तो हम उसको एज अ मार्कर यूज कर सकते हैं। थ्रू GC वी कैन आइडेंटिफाई। Sir, we can also detect genetic defects with GC, जेनेटिक डिफेक्ट्स like because of the chromosomal defect or chromosomal abnormalities. क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज या डिफेक्ट्स जो हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हैं क्योंकि अनलेस एंड अंटिल दे आर ट्रांसलेटेड इनटू अ मेटाबोलाइट हम लोग GC से डिटेक्ट नहीं करते। GC डज नॉट डिटेक्ट जीन्स। GC जो है वो आपके मेटाबोलाइट डिटेक्ट करेगा। बेसिकली आपके अंदर अगर मतलब कोई एक एसिड कंपोनेंट है, कोई एक मेटाबोलाइट है, कैसे कैसे वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वो डिटेक्ट करेगा।
अगर जीन के माल फंक्शनिंग की वजह से वो प्रोडक्ट बढ़ता है तो जीसी कैंडिडेट है, अगर जीन के माल फंक्शनिंग की वजह से वो नहीं होता है देन सर एनालाइट प्रिपरेशन के टाइम पर क्या एनालाइट का स्ट्रक्चर चेंज होता है या वो सेम जो स्ट्रक्चर है वही रहता है? डेरिवेटाइजेशन के टाइम पे फॉर एग्जांपल हम लोग डेलिबरेटली उसको चेंज करते हैं, जैसे मैंने बोला हम लोग नॉन वॉलेटाइल एनालाइट्स को केमिकली डेरिवेटाइज करके, डेरिवेटाइजेशन इज नथिंग बट अटैचमेंट ऑफ समथिंग सम ग्रुप्स, जैसे फॉर एग्जांपल सिलाई ग्रुप्स हम लोग यहाँ पे जैसे डेरिवेटाइजेशन जब करते हैं अपने लैब में तो वी यूज अ रिएजेंट नोन एज MSTF. MSTF इज नथिंग बट अ सिलाई रिएजेंट, सिलाई इज नथिंग बट सिलाई ग्रुप्स SiO, ठीक है। तो हम एनालाइट का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर बस एक ऐसा एक फंक्शनल ग्रुप और ऐड कर रहे हैं जिस वजह से वो वोलेटाइल है। सैंपल एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जो आपका क्वेश्चन था, अगर एनालाइट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है देन आई वुड से दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया तो जो आपको तो रिटेन करना है वो तो नहीं तो मिलेगा, हाँ। जो बन गया वो मिल रहा है, दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। एक्सट्रैक्शन इसलिए जनरली इस एक ब्रॉड प्रोटोकॉल का रखा जाता है जिसके अंदर हम मैक्सिमम एनालाइट्स तो नहीं लेकिन हार्श कंडीशंस में। सर जीसी क्रोमेटोग्राम दिखाया था उसके नीचे रेट तो लगा किसी ने पूछा क्यों नहीं वो रेट रेट क्या ये जो रेट वाला नीचे वाला जो पार्ट है वो नीचे ये वाला ना, these are known as peak markers. क्रोमेटोग्राम आपका आ गया फॉर एग्जांपल, अब आपको उसका क्वांटिफिकेशन भी करना है। क्वांटिफिकेशन मतलब ये जो टेबल में जो हाइट और ये एरिया जो कैलकुलेट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ये हम इंडिविजुअली तो नहीं कर सकते हैं, पीक बहुत सारे हैं और ये वैसे भी इम्पॉसिबल है हम लोगों के लिए करना, ठीक है। किसी पीक का शेप कुछ है, कोई कहीं पे आ रहा है, कोई कहीं पे आ रहा है, तो ये सारा सॉफ्टवेयर सब सॉफ्टवेयर को क्या पता पीक कहाँ पे है, ठीक है। उसके लिए ये पूरा क्रोमेटोग्राम है, ये आपको सॉफ्टवेयर को डिनोट करना पड़ेगा कि भाई ये जो है ये लाइन जो है ये हमारी बेस लाइन है सीधे सीधे, उसके ऊपर ये जो ऐसे ऐसे स्पाइक्स मिल रहे हैं वो हमारे पीक्स हैं, ठीक है। तो पीक डिनोट करने के लिए हम लोग पीक मार्कर यूज करते हैं, तो ऐसे इस तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक पीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक पीक है, बाकी नीचे बीच का जो पोर्शन है दैट इज बेस लाइन, दैट इज मतलब डिसरिगार्ड। तो कैलकुलेशन के लिए ये जो टेबल आपका बनता है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला जो कॉलम एरिया का है वो सारा इसकी वजह से, तो वो हम ही सेट कर देते हैं। यस वी सेट इट मैनुअली। ऑटोमेटेड भी होता है लेकिन ऑटोमेटेड में प्रॉब्लम दूसरी होती है। ऑटोमेटेड में होता है कि कभी कभी फॉर एग्जांपल ये वाला दिख रहा है, ये पीक भी हो सकता है, ये नॉइज भी हो सकता है। अगर आप ऑटोमेटिक रखेंगे तो वो इसको भी कंसिडर करेगा। हमने यहाँ पे मैनुअल किया है इसलिए 31 कंपाउंड में, अगर हम इसको ऑटोमेटेड रखते तो हमें हो सकता है 250 पीक्स मिलते। अब उसमें से कौन हम मतलब स्क्रीन करने कौन बैठेगा कि वो 250 में से कौन सा कंपाउंड है और कौन सा नॉइज। अगर से दो पीक पास में आ जाए तो पीक मार्कर्स को एक साथ दोनों को मतलब मार्क करके ना, उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस आती हैं। सबसे बेस्ट ये है कि जो पीक्स मर्ज हैं उनको आप सेपरेट करने की कोशिश करें, ठीक है, ऑप्टिमाइज करने। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर हमें इक्वेशंस का सहारा लेना। सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट आती है, वो उसको हम डिनोट करते हैं। वो 3 तरीके के मेथड्स होते हैं, रैली और वो डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा ही लंबा होगा। कुछ और जितना ज़्यादा एनालाइट उतनी ज़्यादा हाइट कंसंट्रेशन एरिया बड़ा होता है।